Hello student, welcome to my YouTube channel that is Reshma Educational Hub. Myself Mrs. Reshma Pramod Dige. This is a continuation of our topic that is utility analysis in economics. For 12th standard student, Maharashtra State Board, it will be helpful to commerce as well as arts student also. In this topic, one important question is that relationship between total utility and marginal utility. Basically, utility is what already discussed. We have already discussed about the utility. Utility is the want satisfying capacity of a commodity. So, want satisfying capacity जिसमें होती है commodity में, उसे बोलते हैं हम लोग utility. So, utility can be measured. वो यूटिलिटी हम लोग मेजर्ड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. फॉर एग्जांपल, टोटल यूटिलिटी फर्स्ट कंसेप्ट देखते हैं. टोटल यूटिलिटी इज व्हाट? टोटल यूटिलिटी, टोटल मींस एग्रीगेट. टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम. यानी सपोज आपने कंजम्पशन किया है फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, आपको सेटिस्फेक्शन मिला 10 एंड सेकेंड ग्लास आपको सेटिस्फेक्शन मिला 8. तो आफ्टर कंज्यूमिंग 2 ग्लास ऑफ वाटर, आप 2 ग्लास वाटर जब भी कंज्यूम करोगे तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा इट विल बी 18. तो 10 प्लस 8 18. वैसे आगे आपका कंजम्पशन जैसे बढ़ते जाएगा वैसे आपकी टोटल यूटिलिटी भी बढ़ती जाएगी. सो टोटल इज नथिंग बट व्हाट? आपके फर्स्ट कंजम्पशन से, सेकेंड कंजम्पशन से, थर्ड कंजम्पशन से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो आपको यूटिलिटी मिल रही है, उसका टोटल, उसका एग्रीगेट यानी टोटल यूटिलिटी. सो हियर द एक्सप्लेनेशन इज total utility refers to the aggregate of utility derived by the consumer from all units of commodity consumed. Okay, next one is now marginal utility. So in total utility it is the aggregate of all units, and marginal utility is nothing but it's a additional unit. Marginal means what? Additional. Marginal utility refers to the additional utility derived by the consumer from an additional unit of a commodity consumed. So आप लोगों ने फर्स्ट कंजम्पशन किया है और उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिला 10 एंड इन सेकेंड कंजम्पशन आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 8. सो ये जो बढ़ने वाला कंजम्पशन का सेटिस्फेक्शन है ना, फर्स्ट में 10, सेकेंड में 8 एंड देन आप फिर से और कंज्यूम करोगे तो सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम मिलेगा, दैट इज 6. सो ये जो एडिशनल यूटिलिटी जो आपको मिल रही है हर एक कंजम्पशन के एडिशनल यूनिट से, दैट इज कॉल्ड एज अ मार्जिनल यूटिलिटी. सो टोटल यूटिलिटी इज व्हाट? इट इज एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी. And marginal means what? Marginal means additional utility derived by the consumer from additional units of a commodity consumed. In explanation what I had done, aggregate word देखो highlight किया हुआ है. So just you have to replace, एक ही आपको learn करना है total utility, और aggregate की जगह पे additional word डाल दो और all की जगह पे an additional लिख दो तो आपका marginal utility का explanation हो गया. So this is only about the meaning. ये meaning हो गया कि total utility and marginal utility. But आपको question में क्या पूछा है? relationship between total utility and marginal utility. यानी इन दोनों के बीच में क्या relation है? How it reacts, कैसा हो रहा है changes, वो हम लोग डिटेल में करेंगे in utility schedule. So in utility schedule, first units of commodity, you can take any example. Suppose आपने example लिया consumption of water, 1 glass of water. Suppose आपने first glass of water, 1 glass water पानी पिया हुआ है, तो आपका जो satisfaction है first वो 10 है, that is the marginal utility is 10 and only 1 is consumed, therefore total utility is also 1. But जैसे ही आप second ग्लास ऑफ वाटर पानी पियोगे तो आपका सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम होगा, आप थोड़ा स्लोली पानी पियोगे एंड इट विल बी 8. सो हियर द एडिशनल यूटिलिटी इज 8 and total utility is 18. How it will be? 10 plus 8 is 18. Next one is in third consumption आपका satisfaction और कम होगा, that is 6. और
18 प्लस 6 इज इक्वल टू 24। सो आपको टोटल यूटिलिटी निकालना है। कैलकुलेट कैसे करना है? जस्ट गो ऑन राइटिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो लिखते जाओ। इट इज 10, 8, 6, उसके बाद है 4 एंड गो ऑन एडिंग, तो आपको टोटल यूटिलिटी मिलेगा 24 प्लस 4 यू विल गेट 28। अगेन आपका और सेटिस्फेक्शन कम हुआ, इट इज 2, तो 28 प्लस 2 इट इज 30। और कम हुआ 0, अभी तो आपको सेटिस्फेक्शन मिला ही नहीं, ना के बराबर ही है, दैट इज 0। सो 30 प्लस 0 इज 30 एंड आफ्टर सर्टन लिमिट, उसके बाद आपका सेटिस्फेक्शन क्या होने वाला है? कम होने वाला है। तो एडिशनल सेटिस्फेक्शन इज हियर -2। इवन मतलब एडिशनल बोलो ही मत, इवन ड्यू टू एक्सेसिव ड्रिंक ऑफ वाटर, आपने बहुत ज्यादा पानी पिया तो उसकी वजह से आपको नेगेटिव सेंसेशन होगा, अनईजी फील होगा, मे बी ओमिटिंग हो सकता है। सो दैट इज -2, योर सेटिस्फेक्शन डिक्रीजेस टू -2, इट मे बी अ नेगेटिव और टोटल यूटिलिटी इज नाउ डिक्रीजेस टू 28। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी इन टर्म्स, मतलब शेड्यूल में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, बट आफ्टर द शेड्यूल आपको कुछ एक्सप्लेनेशन लिखना है। एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस शेड्यूल, ऑलवेज स्टेप याद रखो। फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है? जस्ट राइट डाउन द मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आफ्टर राइटिंग द मीनिंग आप शेड्यूल लिखोगे और शेड्यूल के बाद आप लोगों को शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आप शेड्यूल की हेल्प लो। कैसे लिखोगे? देखो, फर्स्ट यूनिट में आपका टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी दोनों सेम है, तो आप जस्ट ऐसे एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कंजम्पशन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज सेम। Second one is when total utility increases, marginal utility decreases. देखो 10 का 18 हुआ, but marginal utility तो कम हुआ, that is 8। यानी total utility increases, marginal utility decreases। ऐसे सेकेंड आपका एक्सप्लेनेशन होगा, सेकेंड पॉइंट। थर्ड वन इज, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा ऐसे ही कम होती जाएगी और टोटल यूटिलिटी ऐसे ही बढ़ते जाएगी एंड आफ्टर सर्टन लिमिट द टोटल यूटिलिटी इज हाईएस्ट, वो हाईएस्ट रहेगी एट दैट टाइम द मार्जिनल यूटिलिटी इज लोएस्ट। लोएस्ट मीन 0, सबसे कम है उस वक्त। जब भी टोटल यूटिलिटी आपका हाईएस्ट है तभी मार्जिनल यूटिलिटी आपकी लोएस्ट है। दिस विल बी योर थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट इज टोटल यूटिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट सेटिस्फेक्शन आपका पॉजिटिव रहेगा, उसमें गो ऑन एड ऑन ऐड ही होने वाला है। So total utility is always positive, but marginal utility can be negative. So इसलिए आप लोग ये आपका एक्सप्लेनेशन ऐसे लिख सकते हो। तो एक्सप्लेनेशन लिखते वक्त भी आपको क्या करना है? शेड्यूल के हेल्प से लिखो। शेड्यूल से ही आपके देखो 4 सेंटेंस आ गए। क्या? इन द फर्स्ट कंजम्पशन सेम सेम, देन इन आफ्टर दैट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। इसको लेते वक्त आप लोग ऐसे बोल सकते हो, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, marginal utility decreases. And when total utility is highest, marginal utility is lowest. And total utility is always positive and marginal utility is negative. थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मीन्स मेन ये बेसिक वर्ड्स है, इसके साथ आप थोड़ा सा बुक रिफर करके उसका एक्सप्लेनेशन और अच्छे से लिख सकते हो। बट दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सेम सेम, देन इंक्रीजेस डिक्रीजेस, हाईएस्ट लोएस्ट, पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपको याद करने के लिए भी बहुत अच्छा है। सो दिस इज द डायग्राम। आफ्टर दिस द डायग्राम इज देयर। इन डायग्राम में देखो कैसे ड्रॉ करना है आपको। इन डायग्राम आप लोग क्या करोगे? फर्स्ट ड्रॉ द एक्स एक्सिस जहां पे आपको यूनिट्स ऑफ कमोडिटी करना है, एंड देन ड्रॉ वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे जहां पे आपको टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी लिखना है। हियर पॉइंट ऑफ स्टैटिटी ये जो दिया हुआ है ये कैसे अचीव करते हो बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल विद द हेल्प ऑफ टेबल में आपके देखो यूनिट्स है 1 to 7, 1 2 3 4 5 6 7 लिखा, और मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम 30 थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 8 12, यू कैन राइट 5 10, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। और ये लिखने के बाद नेक्स्ट वन इज व्हेन यू कंज्यूम 1 यूनिट, आप लोगों का सेटिस्फेक्शन था 10, तो यहाँ पे एक डॉट किया। नेक्स्ट वन इज जब भी आपका कंजम्पशन हुआ 2 तभी 8 सेटिस्फेक्शन था, देन 3
और सेटिस्फेक्शन कम हुआ, 4 के लिए और सेटिस्फेक्शन कम हुआ, देन 5 और डिक्रीज हुआ. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. एंड देन टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी देखो कैसे है. फर्स्ट, देन 10 के बाद 18 हुआ, सो 18 पे डॉट हुआ. 18 के बाद 24, टीयू गोज ऑन इंक्रीजिंग. सो टीयू आपका बढ़ते जाएगा और वैसे इंक्रीज होते होते आपकी टोटल यूटिलिटी कर्व मिल जाएगा. सो दिस इज योर मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एंड दिस इज योर टोटल यूटिलिटी कर्व. और ये जो पॉइंट है 6 और ये यहाँ पे जो लाइन खींची है, इट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑफ स्टेटिटी. दिस इज द मैक्सिमम satisfaction level. Okay, so here we explained the relationship between total utility and marginal utility. This is very important question from the examination point of view. If you like my video, then subscribe my channel, that is Reshma Educational Hub, and press the bell icon. You will get the notification of my next video of utility analysis.